I'm very glad to welcome you all today to today's webinar on the topic BBA, a platform for unlimited opportunities. And we have with us today a very eminent personality, two very eminent personality, who will give us more insight on the topic. So I would like to introduce you all to them. So we have Ms. Pragya Mishra. She is Territory Sales Manager at Practo Technologies Limited. She's an MBA graduate from Xavier's Institute of Management and has an experience of over 9 years in different corporate fields. She's a co-owner of Mystic Edge T-shirts. That is her own startup. So she's an entrepreneur, and she has worked with the service giant Amazon as business operations specialist. We are very happy and glad to have her with us today as one of our panel members. And we have Dr. School of Management in the field of and training and strategy to the hospitality country and is a life member of the prestigious Indian Society for Training and Development. So to start with the session of today's webinar, I would please ask our esteemed panel members to start with the session on the topic BBA, a platform for unlimited career opportunities. So let us start with Ms. Pragya today. Sure. Hi, thank you, Rashmi, for the introduction. You all are in class 12, preparing to enter a world of business if you're looking for BBA. So the course basically gives you a holistic view of how business works. There are a lot of different subjects that you'll be learning in BBA. So the reason why this is one of the best courses I personally feel is that including economics, company law, finance, there are a lot of different subjects. BBA doesn't just concentrate on curriculum. The good part about it is that it'll give you a view of how things work from the context of textbooks and also through practical experience, because you'll be doing case studies, you'll be learning about business, you'll know how to view business from a different view, like different perspective. You'll be able to understand what business newspapers mean because of the way you'll be studying these different subjects. And the future of BBA, it helps you step into a world, into the corporate world, with a lot of knowledge. So when you will be working, when you start working, you will understand that you've already learned a lot of things and you'll be able to correlate with them. So yeah, this is the basic gist of how BBA is going to help you. Also, yeah, since I was in Amazon after my college, and I was also working on a startup, I was able to understand a lot of things which I had already studied. Like, for example, understanding consumer behavior, or what is a buying pattern, what are the kind of things that goes into a customer's mind. So here you are understanding how a business is working. You're also able to understand how consumers are perceiving a business. And also BBA opens a lot of fields. Like, you will not be limited to just one section of a business. You can enter operations, you can enter sales, you can enter the production side of it, the manufacturing, the finance. A lot of people do CA with BBA, so you can understand finance more. There are a lot of opportunities that come in with BBA. It's not just a single subject that will lead you to just one path. You have a lot of branches that you can go into. Okay, so Dr. Anshuman, so if you would like to put some light on the topic today. Yes, you see, good afternoon, everybody, the participants especially. What Ms. Mishra has said is absolutely right, in the sense that BBA is not just a curriculum like we see in BCom, BSc or BA. BBA is entirely different from such a rigid curriculum. There is a lot of practical experiences which are inbuilt into the curriculum. For example, while studying BBA, this 3-year program, a student can go and work in the industry, earn also at the same time, of course, in the form of a stipend, but at the same time gets first-hand exposure
on different sides of a business. If we look at the nomenclature of the business itself, of the program, it's a Bachelor in Business Administration. That means it equips us with the knowledge and the skill to administer or manage a business. Now, as Ms. Mishra said, that it opens a lot of career opportunities. Of course, yes. At the same time, Sir, excuse me, sorry to interrupt in between. We have a special request from one of our participants, Deepak Singh. So he wants to share your view in Hindi if possible. Okay, sure. I'll switch between the two languages, but only one request to Mr. Deepak Singh as well as others, that my Hindi is a little weak, so you have to pardon the mistakes that I'll be making while speaking in Hindi. So, जो मैं कह रहा था कि करियर अपॉर्चुनिटीज तो है ही है बीबीए खत्म होने के बाद, बट एक बड़ा जो अपॉर्चुनिटी आता है स्टूडेंट्स के सामने वो है एमबीए करने का, मतलब अपना जो क्वालिफिकेशन है वो और आगे बढ़ाने का. अब ये क्वेश्चन कोई भी बोल सकता है कि सर एमबीए तो हम बीकॉम बीए या बीएससी करके भी हम ज्वाइन कर सकते हैं. जरूर कर सकते हैं, लेकिन बीबीए में जो 3 साल का जो बेस तैयार हो जाता है, उसके बाद जब हम एमबीए में जाते हैं तो एमबीए में हम एक्सेल करते हैं बीबीए करके जाने के बाद. तो एमबीए में मैं खुद जब एमबीए किया था, मैंने देखा जो लोग बीबीए करके आए थे उन लोगों को काफी एडवांटेज मिल गया हमारे खिलाफ. तो बीबीए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है बीबीए में. इन Ms. Mishra spoke about production, sales and marketing, as well as finance. There is another area which is HR. HR also is given a lot of input because these companies all industries are people dependent. You see, ultimately आप बहुत सारा मशीनरी यूज करें, टेक्नोलॉजी यूज करें, अल्टीमेटली वो टेक्नोलॉजी ड्राइव करता है लोग, ह्यूमन बीइंग्स. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ वेरी बिग रोल. सो बीबीए में हम उसमें भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. तो बीबीए के फर्स्ट 2 इयर्स में आप जनरल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग. फिर जो लास्ट ईयर होता है उसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना है, क्योंकि 2 साल पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस चीज में स्पेशलाइज करना है एंड मुझे इसी चीज में अपने करियर को फॉरवर्ड लेके जाना है. तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है, पहले एक बेस मिल जा रहा है सेट करने के लिए, और फिर उसके बाद आप आगे रिसर्च करके पढ़ के, खुद भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, केस स्टडीज पढ़ने पड़ते हैं, बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, बिकॉज बहुत बिजनेस बुक्स होती हैं, तो आपको वो सब पढ़ के और एक पुश मिलता है. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप हमारे पैनल मेंबर्स से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में जाके टाइप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू. And I would also like to mention, we at IIS School of Management, हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों के लिए बीबीए में, we have a special program called Work Learn Program. So जो वर्क लर्न प्रोग्राम होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है that is only designed for BBA students. जैसे आप मान लीजिए पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ जब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर्स में जाते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हम क्या करते हैं कि आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, और वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपके पढ़ाई का ही एक पार्ट होता है, जहाँ पे आप मान लीजिए कुछ इंटर्नशिप टाइप का, जहाँ पे आप कंपनी में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे जो आपने फर्स्ट ईयर्स में पढ़ा है थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के ऊपर या एचआर के ऊपर या फाइनेंस के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, वो सब आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा कि ये सब कंपनी में होता क्या है, कंपनी काम कैसे करते हैं. तो उसके बाद क्या होगा, आपका और जो नॉलेज है सब्जेक्ट के ऊपर वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा. और जब आप जैसे आप बीबीए फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, जब आप थर्ड ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपके पास जो थियोरेटिकल नॉलेज है सब्जेक्ट का कि कंपनी ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसे काम करती है, ये सब तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा आपके पास एक बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होता है. तो जब आप स्टेप आउट करोगे बीबीए के बाद
तो यू विल नॉट बी समवन कि आपको बस सब्जेक्ट ही आता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ रहता है उसके साथ. सो दिस इज अ स्पेशल थिंग हम IIAS में देते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए. दैट इज अ वर्क लर्न प्रोग्राम. हम एसोसिएट करते हैं बहुत सारी कंपनीज के साथ, जैसे सिलीगुड़ी में हो गया न्योटिया हेल्थ केयर सेंटर है, देन पैंटलून्स है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा ग्रुप्स है. सो इन लोगों के साथ हम लोग का टाई अप है. सो हम लोग वहाँ पे भी बच्चों को प्रैक्टिकल्स या एक्सपोजर्स के लिए भेजते हैं. एंड आई हैव वन क्वेश्चन हियर. सो BBA, this is from Deepak Singh again. So BBA कल कैसा है और कंपनी कैसा है? So I want to know about the BBA integrated industry. So if our panel members could put some more light on this particular question. BBA integrated industry, I believe कि जो ये দেবজিৎ ব্যানার্জি से क्वेश्चन है, हाँ, so আমার যেটা মনে হয়, যেটা এক্ষুনি মিস প্রধান বলছিলেন, যে যখন বিবিএ পড়ানো হয় তখন কিন্তু শুধুমাত্র ক্লাসরুমে বিবিএটা কনফাইন্ড থাকে না. বিবিএ কিন্তু মানে ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাকচুয়ালি যেতে হয়, ইন্টার্ন হিসেবে যেতে হয়, ওয়ার্ক লার্ন প্রোগ্রাম যেটা অ্যাডিশনালি করা আছে IIAS এ, সেখানেও গিয়ে কাজ করার মাধ্যমে শিখতে পারা যায়. শুধু ক্লাসরুমে শিখলাম সেটাকে আমি অ্যাপ্লাই করার, ইমপ্লিমেন্ট করার জায়গাটা কিন্তু করে দেওয়া কিন্তু কলেজের দায়িত্ব. তো সেই জায়গাটা করা হয় IIAS থেকে. Okay, we can go ahead with the discussion if Ms. Mishra wants to add up anything on this particular topic again for our students, for our participants. Also, आप जब BBA कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक कंपनी के बारे में नहीं सीखते हैं, आप एक वर्टिकल के बारे में नहीं सीखते हैं. आप FMCG कंपनीज जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो IT इंडस्ट्री होती है, जो मिल रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि हर कंपनी कैसे काम कर रही है. देखिए, टू गो अहेड, IT इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी बूमिंग. स्पेशली अभी ये जो कोरोना वायरस हुआ है, इसके कारण सब चीज ऑनलाइन चली गई है. एवरीथिंग हैज मूव डिजिटल. तो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री दैट इज कमिंग अप इज डिजिटल इंडस्ट्री, जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग होती है, जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे देखते हैं, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं. बिकॉज पहले कंपनीज क्या करते थे, वो लोग टीवी पे एडवर्टाइज करते थे, रेडियो पे एडवर्टाइज करते थे. तो अभी उनका वैल्यू है, बट वो धीरे धीरे कम हो रहा है. एवरीथिंग इज मूविंग टू डिजिटल, क्योंकि आप मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप ज्यादा यूज कर रहे हैं. तो ये सब, सो इस कोर्स में आपको वो भी समझ में आएगा कि प्लेटफॉर्म्स चेंज होंगे, लेकिन आपका जो मार्केटिंग टेक्निक्स है, जो आपकी सेलिंग टेक्निक्स हैं, हाउ टू रन अ बिजनेस, वो सब चेंज नहीं होगा. आपको एक बेस मिलेगा टू अंडरस्टैंड. और फिर आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाएं या कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपका बेस सेम है. तो यू आर नॉट, you'll be रेडी. आप तैयार होंगे टू फेस एनीथिंग. आपने सही कहा, ये सिर्फ कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है. जैसे IT इंडस्ट्री इज गोइंग टू फ्लरिश आफ्टर वी कम आउट ऑफ ऑल दिस. एक और सेक्टर मुझे लगता है बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगा, वो है हेल्थ केयर, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस. एक चीज अच्छा हुआ है, एज इंडियंस हम लोगों को बहुत हेल्थ कॉन्शियस बोल के हमारा नाम नहीं है, तो কিন্তু এরকম একটা প্রবলেমের পর নাও উই রিয়েলাইজ হাউ ইম্পর্টেন্ট হেলথ ইজ ফর অল অফ আস. সো আমার ধারণা প্রিভেন্টিভ হেলথ কেয়ার, প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, প্রিভেন্টিভ চেকআপ, এইগুলো আমাদের সোসাইটিতে আরো বাড়তে চলেছে. সো হেলথ কেয়ার ইজ গোয়িং, অ্যান্ড উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য রোল অফ দ্য হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স, ডক্টর্স, নার্সেস. এনাদের জায়গাটা কোথায় সেটাও এই ধরনের একটা ডিজাস্টার না হলে হয়তো বোঝা যায় না. সো আমার ধারণা দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইন্ডাস্ট্রি হুইচ ইজ গোয়িং টু ডেভেলপ. और सर, हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल को अच्छे से चलाने के लिए उसके बैकबोन उसका विल बी मैनेजमेंट, क्योंकि उन्हें उनके सप्लाईज देखने होते हैं, उन्हें उनकी चार्टिंग करनी होती है, वेटिंग लाइन मैनेजमेंट होता है. ये सब आपको BBA वाले कोर्सेज में ही समझ में आएगा. और अभी आप देखिएगा, अभी एक चीज है, ये जो कलकत्ता में आप 3, 4, 5 टॉप हॉस्पिटल्स की तरफ देखिएगा, जो CEOs हैं उनमें से एक जन भी डॉक्टर नहीं है. करेक्ट. ऑल आर MBA होल्डर्स. आप अपोलो में देख लीजिए मिस्टर राणा दास गुप्ता, या कोलंबिया एशिया में मिस्टर अरिंदम बैनर्जी,
या आपका 40s में मिस्टर जेकब जॉर्ज, नॉट वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर. सारे दूसरे इंडस्ट्री से आए हैं, एमबीए होल्डर्स है, एंड दूसरा इंडस्ट्री को मैनेज करने के बाद आके हेल्थ केयर सेक्टर को संभाल रहे हैं. सो फॉर द पार्टिसिपेंट যারা बीबीए पढ़ते चाहिए, जो लोग बीबीए पढ़ना चाहते हैं, हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक इस वक्त आपके लिए नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा. आपको सिर्फ अपना दिशा तय करना है. हम फिनांस में जाएंगे या ऑपरेशंस में जाएंगे या मार्केटिंग में या एचआर में, वो आपका स्पेशलाइजेशन बनेगा. लेकिन इंडस्ट्री सारे इंडस्ट्रीज आपके पास खुला रहेगा. Miss Pragya, since you yourself is an entrepreneur and you have your own startup, so if you could please put some light on this particular thing, that how one can be an entrepreneur after BBA, I think that would be a very helpful thing for our participants to understand. Sure. So मैं जब BBA कर रही थी तब मुझे और जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, हमें ये आइडिया आया था कि हम जो सीख रहे हैं अगर हम उसे हाथों हाथ एक्सपीरियंस में लगाएं तो हाउ विल इट वर्क आउट. एंड हमें कुछ नहीं पता था, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी वर बिगिनर्स. हाउ टू स्टार्ट द ऑपरेशंस, कहाँ से शुरुआत होती है. सो लेट मी टेल यू, हर चीज बहुत सिंपल होती है. कोई भी चीज बहुत मैग्नेनिमस नहीं रहेगी, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा. आपकी जो बेसिक क्लासरूम लर्निंग होती है, अगर आप उसी को अप्लाई करके आप स्टेप बाय स्टेप इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है, और उस आइडिया को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत चाहिए होती है. एंड हमें हमारे प्रोफेसर से बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि हम अपने मार्केटिंग में क्या करें, हम फाइनेंस में क्या करें, तो उस टाइम पे हम ये सब सीख रहे थे धीरे धीरे. और फिर जब कोर्स खत्म हुआ तब हमने कैसे बिजनेस को बढ़ाएं. तो इसमें हम क्या कर रहे थे, बेसिकली मेरा जो स्टार्टअप है वो टी शर्ट्स का है. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिजाइनिंग, फिर उसे प्रिंट कहाँ करवाएं, उसे सेल कैसे करना है, उसे कहाँ सेल करना है, उसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे. इनफैक्ट हमने डायरेक्ट सेलिंग भी किया था, विच वॉज थ्रू एग्जीबिशंस. सो उस टाइम पे हमें जब हमारे पास आते थे कस्टमर्स, तो हमसे पूछते थे कि हमें ये वाला डिजाइन चाहिए, तो हमें समझ में आ रहा था कि वो क्या माइंडसेट से आ रहे हैं. सो सी, एक छोटे बिजनेस में हमने काफी वर्टिकल समझे थे. सो तो उससे हमें समझ में आया कि, एंड देन लेटर ऑन वी अंडरस्टूड कि अब हमें इसे ग्रो और करना है तो हमें क्या चाहिए. ऑफ कोर्स कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो कैपिटल कहाँ से लाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दैट इज हाउ द स्टार्टअप बिजनेस वाज आल्सो इन अ वे related to BBA. Okay. Thank you, ma'am. So that was I think, very good insight on how one can be an entrepreneur just after doing BBA or even when doing BBA. So मैं हमारे participants से कुछ share करना चाहती हूँ. That is like मैंने भी BBA किया है, and I was the very first batch of St. Joseph's College when we were doing BBA. And BBA तब हाल ही में शुरू हुआ था. That was back then in 2008. तो हम लोग को उतना कुछ पता नहीं था कि बीबीए क्या है क्या नहीं है. एंड देन वी हैड नोबडी टू गाइड अस कि बीबीए होता क्या है. हम लोगों को बोला गया कि अच्छा नया कोर्स आया है मार्केट में, बीबीए, चलो बीबीए करते हैं. तो दैट इज हाउ वी वर पुश्ड ऑन टू द कोर्स, एंड देन वी डिड नॉट हैव अ रियल क्लैरिटी कि बीबीए होता क्या है, क्यों करना है. एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग इट ग्रेजुअली. देन उसके बाद हमको पता चला कि ओ बीबीए, इट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स फॉर यू, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू एज एन इंडिविजुअल. तो आज आप यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, बट यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे अच्छे पैनलिस्ट से या people who have already been working in the organizations, उन लोगों से आप लोगों को बात करने का मौका मिल रहा है. आप लोगों को पता चल रहा है कि बीबीए एक्चुअली होता क्या है. तो we at IIAS School of Management, we are really keen into imparting education, and we understand that every kid is important and education is very very important. और आप लोग जो मतलब बीबीए के बारे में जानना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, at the end of the day you should actually have a fruitful progression in that particular sector, in that particular education system. So
हम लोग BBA IIS में कैसे करते हैं, आई जस्ट वांट टू से a few things to our participants which might you might feel interesting and good to know. So जैसे ही हम हमारे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं BBA में, we tell them कि मतलब BBA होता क्या है, कैसे होता है. These all process it is being done before you get into the course also. उसके बाद we have industry development programs, वी हैव वर्क लर्न प्रोग्राम्स, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता रही थी. उसके अलावा हम लोग बच्चों को इंडस्ट्री के लिए रेडी करते हैं. वी नॉट ओनली सी ऑन द एकेडमिक्स बट ऑल्सो ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. वी रन वेरियस डिबेट कॉम्पिटिशंस और बाकी जो सारे कॉम्पिटिशंस, जो एग्जाम्पल बिजनेस का मतलब मैम ने किया, मैम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप हो के लिए बस आइडिया होना काफी नहीं होता है, और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना होता है वो आइडिया, मतलब वो हम आपको सिखाते हैं. वी रन बिजनेस प्लान कंपटीशन, एंड बिजनेस प्लान कंपटीशन में बिजनेस प्लान कंपटीशन जो होता है वो एक्चुअली बच्चे लोग अपना जो भी आपका छोटा बड़ा जो भी आपने सोचा हुआ कि आपने क्या करना है बिजनेस में कैसे करना है, तो वी गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर, एंड देन उसके बाद वी टेक इट टू अनदर लेवल, वी टेक इट टू अ कंपटीशन लेवल. Okay, I think I am having some network issue. So, ma'am or sir, Dr. Anshuman. So I think you can continue because उनका connection थोड़ा slow है. Rashmi, I think, has some connection problems, the host herself. ठीक है, before she comes back, another area which I would like to mention here, बहुत रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं हिंदी में बोलने के लिए, बांग्ला में बोलने के लिए, मिक्स करके. So and I am trying also. At the same time, हम सबको ये रियलाइजेशन अभी किसी ना किसी टाइम पे आना पड़ेगा कि आगे अगर हमको नेशनल लेवल पे अगर बिजनेस में काम करना है, बिजनेस करना है या बिजनेस में काम करना है, हमें तो कोई कॉमन लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा. जैसे बट अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर इज द सिचुएशन, अच्छा है बुरा है जो भी हो, इंग्लिश इज द ओनली कॉमन लैंग्वेज इन इंडिया. और मैं सबके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ, आई एम फ्रॉम अ प्योरली बंगाली मीडियम स्कूल. तो मैं पूरा बंगाली मीडियम में पढ़ा, अपना सारा फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है सारा बंगाली में लिखा. लेकिन जब देखा कि दुनिया में अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, आई हैड टू पिक अप द लैंग्वेज एंड आई हैड टू स्पीक वेल इन दैट लैंग्वेज टू. सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल नीड टू डू दैट. व्हाटएवर वी स्टडी, इससे बीबीए की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे अपना करियर को बढ़ाना है तो IIS में हम हमारे यूनिवर्सिटी करिकुलम में रहे ना रहे, वहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह है, बट उसके अलावा उससे हटके हमने अलग पीरियड्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे हर एक स्टूडेंट का इंग्लिश कम्युनिकेशन को ऊपर हम काम करते हैं. क्योंकि ये टीचर्स का, ये कॉलेज का फर्ज बनता है. सिर्फ पढ़ा देना और एक डिग्री दिलाना एक कॉलेज का काम नहीं होता है. हर एक स्टूडेंट को काबिल बनाना, जो कॉलेज से बाहर जाए डिग्री लेकर तब काम करना या आगे और हायर एजुकेशन में जाए, जो भी हो, उसमें उसको काबिल बनाने के लिए सिर्फ करिकुलम देने से नहीं होता है. There are some more behavioral abilities जो बहुत जरूरी होता है. उसमें एक है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा और भी क्वालिटीज हैं, तो जिसका हमारे पास मॉड्यूल्स है. एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. Most of the people that I come across, even in HR, I'm not talking only about students, जो लोग काम करते हैं, they don't even know how to write a CV. सब भूल जाइए, मतलब बातचीत तो शुरू ही तब नहीं हुआ. CV कैसे लिखना है यही आता नहीं है कितने लोगों को, ज्यादातर लोगों को. सो एक मैं एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एबिलिटीज है जो एक फ्रेश ग्रेजुएट के पास होना चाहिए, एंड हमने उसका इंतजाम कर रखा है.
हमारे पास वी हैव क्रिएटेड आवर ओन मॉड्यूल, वी हैव वेरी एबल टीचर्स एंड ट्रेनर्स जो ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, एंड ये करिकुलम के पूरा बाहर है, फिर भी हम फर्ज समझते हैं, करते हैं। सो इसीलिए अब देखिए मेरी हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि हिंदी में हम बिजनेस नहीं करते हैं, ना ही बांग्ला में करते हैं, बट इंग्लिश हमें बोलना पड़ेगा, ये हमने बहुत पहले सोच लिया था और इसलिए हम बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट सर, आई थिंक मैनेजमेंट का एक सिनोनिमस वर्ड कम्युनिकेशन भी होता है, which is Absolutely. extremely important. अगर आपको एक आइडिया है लेकिन आप उस आइडिया को अपने फेलोज को समझा नहीं पा रहे, तो फिर उस आइडिया का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी फॉर्मलाइज नहीं हो पाएगा। तो वो समझने के लिए अगेन बीबीए और आपने जो कोर्सेज बताए हैं, जो आपको एक हेल्प चाहिए होती है, एक सपोर्ट चाहिए होता है अपने कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए। आप भले हिंदी में समझाएं, बंगाली में समझाएं या इंग्लिश में समझाएं, आप किस तरीके से समझा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं वो आपके डेवलप होना फॉर मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप सोचिए ना, आप जैसे आप अमेज़न में या प्रैक्टो में आप मैनेजर है, अभी एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें एक पहाड़ी है, एक नेपाली है, एक बंगाली है, एक तमिल है, एक गुजरात से भाई है, तो आप किस भाषा में बात करिएगा और कितने सारे लैंग्वेजेस में आप बात करने लगेंगे, तो कोई तो एक कॉमन कम्युनिकेशन होना ही पड़ेगा। हाँ, तो आप यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू यूज द टर्म सॉफ्ट स्किल। ये तो जो हम टेक्निकली सीखते हैं, करिकुलम में सीखते हैं, वो तो हमारा हार्ड स्किल होता है। उसके अलावा जो स्किल्स होता है वो सॉफ्ट स्किल होता है, जो पैकेजिंग होता है एक आदमी का, एक इंसान का। सो हम कैसे पेश आना, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। There has to be a very fine balance, जहाँ पे आपका theoretical knowledge और आपके soft skills का balance बहुत equal होना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन पाएंगे। Correct. Is Rashmi back with us? Yes, sir, I'm there. Okay, then you can take over. Sure, sir. So मैं यही बता रही थी हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि जैसे हमने बोला, सर ने हमारे को से उठना है, कैसे बैठना है, कितना ज्यादा बोलना है, कितना कम बोलना है। सो I think again my network is not working properly. So no, it is now working properly. We can hear you. Okay, because I see all the red lines coming across in front. So no, it's working now. अच्छा, तो सॉफ्ट स्किल्स जैसे जो होता है, हम लोग उस पे भी IIAS में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं स्टूडेंट में। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग we work on their postures, बैठना कैसे है, we work only important for you as a person to grow, and जैसे जब आप job interviews के लिए जाएंगे, when you will be facing any interviewers, I would request Mr. Day to take over for some time. Normal, we in sure, okay, sir. Okay, sir. Yeah, so I believe we were having some issues, so we'll just go ahead with the discussion. Dr. Chatterjee and Ms. Pragya, I think what the agenda of this session was that we want to discuss more about the various career opportunities, and there are various fields that you have already mentioned, right, when we started the discussion. So could you just take up a few of these areas and just elaborate on that about, as we have already learned that a BBA is the first 2 years is more or less common, and then they learn a lot of, new things in the last year. So how does that prepare someone for the industry? And also, what should a person do if they want to do further studies after BBA? I think Ms. Mishra, you can address it first. Sure. So, हम जो BBA में सीख रहे हैं, whatever we are learning in BBA is something that again can be inculcated. आप अगर आज for example मेरे साथ में जो हुआ, I'll tell you that मैंने specialize किया marketing में,
तो सेल्स और ऑपरेशंस मार्केटिंग का पार्ट होता है. थर्ड ईयर में फाइनल मैंने वो किया था. ऑल्सो मैं यूएस गई थी समर स्कूल के लिए, विच इज बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली में मैंने 1 महीने का कोर्स किया था इन कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. तो ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने पढ़े, उसके बाद में मेरा स्टार्टअप था जहाँ पे मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे लर्निंग्स को अपने बिजनेस में लगाया. एंड देन मैं अमेजोन गई. Now Amazon में सबसे पहले मैं थी seller support में, which was a very basic job role. It was not a managerial role. But then I knew कि अगर बढ़ना है, आगे होना है, तो you'll have to start from the basic. आपको एकदम शुरुआत से सब चीज सीखनी होगी. एंड वहां पे हम यूएस सेलर्स, इंडियन सेलर्स, चाइनीज सेलर्स, हर टाइप के सेलर से इंटरेक्ट करते थे. और Amazon इज अ ह्यूज कंपनी, तो वहां पे उनके जो गुड्स जो उनके वेयर हाउसेज में अटक गए हैं या फिर उनका पेमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग उन सब चीजों से डील करते थे. आफ्टर दैट आई मूव्ड ऑन टू द बिजनेस ऑपरेशन साइड. अब्दुल, आर यू स्पीकिंग समथिंग? नहीं तो आप अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज. एंड देन बिजनेस ऑपरेशन साइड में जाके अगेन हमें स्टेक होल्डर से मिलना होता था. हर बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं. स्टेक होल्डर्स आर बेसिकली पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द होल प्रोसेस. सम ऑफ देम के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, किसी के इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो सकते. ये लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं एक बिजनेस के. तो वहां पे जाके जो Amazon की आप लिस्टिंग देखते हैं, वी वर वर्किंग ऑन दोस लिस्टिंग्स. और वो लिस्टिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि अगर लिस्टिंग्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. एंड देन कंपनी को प्रॉब्लम होती है, कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स होते हैं, द होल एंटायर बिजनेस फेसेस प्रॉब्लम्स. सो आई हैव वर्कड इन अ कपल ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ Amazon. सो अगेन द थिंग, मुझे आसानी क्यों हुई ये सब करने में? देखिए, मैंने सीखा बहुत. हर चीज आप एक पॉइंट पे नहीं सीख सकते, आप धीरे धीरे सीखते हैं. लेकिन आपका अगर बेस स्ट्रांग होता है, आप क्योंकि वो जो पढ़ाई मैंने पहले की हुई थी उसके कारण मुझे समझ में आ गया था कि मुझे ऑपरेशंस में ये करना है. मैंने अपना बिजनेस किया विच वाज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड नाउ आई एम इन सेल्स. सो अब सेल्स में मुझे इंटरेक्ट करना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स से. एंड अगेन ये सब डॉक्टर्स भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के हैं एंड अलग अलग एज के हैं. सो हाउ टू इंटरेक्ट विद दीज डॉक्टर्स. आप अपने आप, बिकॉज सेल्स इज जस्ट आप कैसे बात करते हैं, दैट इज अल्टीमेटली सेल्स. और आपके आइडियाज कैसे हैं, आप वो चीज पोर्ट्रे कैसे कर रहे हैं, बिकॉज आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो वर्क इन द आईटी कंपनी, वर्क इन द एंटरप्रेन्योरशिप. सो अलग अलग टाइप के कंपनीज में मुझे एक्सपोजर मिला है. इट्स ऑल बिकॉज बीबीए के थ्रू मुझे स्टार्टिंग में बस ये पता था कि मुझे बिजनेस रोल में जाना है. That's it. That was the smallest idea that I had, and now it's just growing. And I know अभी और आगे बहुत कुछ करना है, but मेरा path fixed है. So Pragya, just to add on to this, आपने MBA करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि आप तो BBA कर चुके हैं. बहुत लोग BBA करने के बाद, या BBA क्यों, बहुत सारे अंडरग्रेजुएट कोर्स करने के बाद MBA करना या फर्दर स्टडी करना एक चॉइस रहता है बहुत लोगों के लिए. So why do you choose that? And why, what makes you think that that is the right direction for some people to go? Yeah, okay. So BBA करने के बाद कुछ साल मैंने काम किया, and then while I was working मुझे लगा कि now अपने skills को और थोड़ा sharpen करने की जरूरत है. And that is the reason why MBA was important for me. And MBA की preparation में भी बहुत time लगता है. So अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है, आपको पता है कि आप अगर अच्छे कॉलेज में जाएंगे, आपके प्रोफेसर्स अच्छे होंगे, आपका एक्सपोजर अच्छा होगा. MBA का एक one of the very important things is networking. Networking से आप MBA में क्या होता है, a lot of people from different fields are also coming to MBA. तो जब मैंने किया था, that was executive MBA. I had people जिनका 12-15 साल का एक्सपीरियंस भी था, जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस भी था. और हमारे प्रोफेसर जितने भी होते हैं, वो सब प्रोफेसर्स अलग अलग फील्ड से आए हुए होते हैं. कोई रिलायंस से था, कोई TCS से था, कोई Amazon से था, अलग अलग देशों में पढ़े होते हैं. तो ये अपने एक्सपीरियंस से आपको पढ़ाते हैं MBA में. तो MBA से आपके जो BBA में आपने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी BBA किया हुआ था, मेरे लिए बहुत इजी हुआ था MBA समझना. इट वाज एक्सट्रीमली इजी फॉर मी. एंड देयर वर अ फ्यू पीपल जो इंजीनियर्स थे या फिर और भी अलग अलग फील्ड से आए हुए थे. हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, बट फॉर मी माय BBA डिग्री हैड हेल्प्ड मी दैट वे. Okay. And Dr. Chatterjee, could you just tell us if a student wants to finish their BBA and then go on to further studies, so what kind of exams या क्या कुछ joint entrance होता है ऐसा,
जो उनको बैठना होता है, इवन फॉर बीबीए, जब अभी वो लोग क्लास 12 से बीबीए पढ़ना चाहते हैं, so is there any sort of joint entrance या any test that they're supposed to give? Yeah. You see, पहले बीबीए से कोई कॉलेज में जाना, तो इसके लिए एक जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में जो यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मकाउट बोलते हैं, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उन लोगों का एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आपको अपियर होना पड़ेगा। लेकिन इसका सिस्टम ऐसा है कि देयर इज नो रैंकिंग सिस्टम कि आपको ये रैंक मिला है तो आपको वो कॉलेज मिलेगा, इस टाइप का नहीं है। इट इज समथिंग लाइक अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। आपको उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें आपको बैठना है, तो वो एग्जाम में बैठना जरूरी होता है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, जो कॉलेजेस है, स्टूडेंट्स पहले से उस कॉलेज में भी कॉलेजेस में चले जाते हैं, कॉलेजेस में अपना सीट बुक कर लेते हैं, अपना जो एडमिशन है एडमिशन ले लेते हैं। तो एडमिशन लेने के बाद वो एग्जाम में भी बैठना पड़ता है, तो वो तो कॉलेज हेल्प कर देता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें सीट्स पहले फुल हो जाता है, उनके पास बहुत ज्यादा सीट्स तो होता नहीं है कि बाजार खोल के बैठे हुए, ऐसा नहीं होता है जो अच्छे कॉलेजेस हैं। तो उसके लिए मेरा एडवाइस ये रहेगा, जो लोग बीबीए पढ़ना चाहते हैं, कि भाई कोई अच्छा कॉलेज देख के अपना एडमिशन लेके रखो, एंड बाद में जब वो इस साल तो हमें मालूम नहीं है कब होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो एंट्रेंस टेस्ट जो है यूनिवर्सिटी का, जब होगा तब बैठने का होगा। हो सकता है ऑनलाइन भी हो इस साल या ना ही हो। सो अपना कोई अच्छा कॉलेज चुन के वहाँ पे एडमिशन लेना बंद नहीं करना चाहिए ये समय, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी कॉलेज जो who are coping with this situation, वहाँ ऑनलाइन में एडमिशन भी हो रहा है। तो ये तो गया बीबीए के बाद, और बीबीए पढ़ने की बात है। बाद में जब इसका जब बात आता है एमबीए में जाने का, उसके लिए भी एग्जाम्स होता है, मैट होता है, कैट होता है, सो उसमें बैठना पड़ता है, उसके लिए अलग से तैयारी होती है। सो उसके लिए भी जो तैयारी जो होती है, उसके लिए भी जैसे कॉलेज को हेल्प करना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला था सॉफ्ट स्किल में कॉलेज को हेल्प करना चाहिए। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैट ऑल्सो, जो मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट है, तो उसके लिए भी जैसे हम तो अपने कॉलेज के बारे में बता सकेंगे, वी स्पेशली कोच द स्टूडेंट्स फॉर अपीयरिंग इन दोज एग्जामिनेशंस। लेकिन पहले तो वो तो बाद में आएगा, जो टेस्ट जो देना पड़ेगा। लेकिन बीबीए के लिए तो अभी तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा, to carry the discussion forward, next is that what I want to know is that I think a lot of students also want to know, because आजकल बहुत सारे टाइप के बीबीए कोर्सेज आ चुके हैं मार्केट में। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो वेरियस थोड़ा स्पेशलाइज्ड बीबीएस भी करवाते हैं। आई नो फॉर एग्जांपल दैट देयर आर कुछ बीबीए है जो एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस्ड होती है, देयर आर बीबीए कोर्सेज जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे फोकस्ड है, देयर आर सम बीबीए जो आई थिंक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में फोकस्ड है। सो वुड यू ask someone to go for a general BBA, or do you think in today's time a specialized BBA makes sense? You see, जैसे पहले हमारे मैडम भी मिस मिश्रा भी कहा है कि once you do your BBA and maybe MBA after that, each and every industry is open in front of you. बट आपने बीबीए के समय से सोचिए, जैसे आपने कहा कि कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो रहा है, या जहाँ आपका हेल्थ केयर में ही सिर्फ हो रहा है, या एनी एंटरप्रेन्योरशिप में, फिर इसमें क्या होता है, आपका एक लिमिटेशन आता है। मैं जरूर इसका ये कहूंगा कि व्हेन इट इज फोकस्ड राइट इन द बीबीए स्टेज, कि आप हेल्थ केयर के बारे में इतना पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी उस इंडस्ट्री के बारे में जरूर ज्यादा होगा। लेकिन जो होगा कि आप दूसरा इंडस्ट्री में जाने के लिए वहां पे कुछ ना कुछ बैरियर आता है। Whereas if you look at a proper general BBA कोर्स, वहां पे आप सारे इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इतना फोकस्ड आप शुरू में हो जाइएगा ना, ये आपका पूरा एरिया कम होते जा रहा है। लेकिन बीबीए आप करिएगा, उसमें आपके पास फिनांस, मार्केटिंग, एक मैं अगर हॉराइजॉन्टल देखूं, फिनांस, मार्केटिंग, आपके पास एचआर, ये सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आप वर्टिकल में जाइए, उसमें आपका डिफरेंट वर्टिकल्स है, आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, आईटी हो सकता है, आपका आईटीईएस हो सकता है, ऑनलाइन सर्विसेज वो हो सकता है, जैसे मैडम ने कह रहे थे, आपका
हेल्थ केयर भी अभी ऑनलाइन है, फिर Amazon या फ्लिपकार्ट इस टाइप के कंपनीज है, एंड देयर आर थाउजेंड अदर इंडस्ट्रीज, देयर आर नंबर ऑफ MBA HR वर्किंग, फॉर एग्जांपल इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देखिएगा, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन करेंसी अर्नर्स इन द कंट्री, एंड इतना लोग काम करते हैं. दूसरा कोई सेक्टर में इतना लोग, इतना मैन पावर और कोई सेक्टर में नहीं है जितना हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है. ये वर्ल्ड का इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड में नंबर 1 है, नंबर 2 में ऑयल है. सो ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे MBA इन फिनांस, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एज वेल एज HR, ये सारे BBA MBA करके ही आते हैं. ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पर पढ़ के इसमें नहीं आते हैं. तो वहाँ पे भी एक ह्यूज ओपनिंग है. लेकिन आप अगर सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन में एंटरप्रेन्योरशिप को लेके किया या हेल्थ केयर को लेके किया, फिर आपको ये सब इंडस्ट्री में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. इसलिए माय एडवाइस रहेगा कि गो फॉर अ BBA ऑनर्स. Okay. So I'll just direct the next question to Pragya because I have received an interesting query on the chat. Pragya, if you just can answer this. There's a question कि BBA के बाद can I get placement after BBA or do I have to do an MBA? Okay. So BBA is a course in itself. अगर आप चाहें तो आप सिर्फ BBA करके अपना पूरा करियर बना सकते हैं. Now the difference between doing an MBA and BBA is MBA is basically, again, जो मैंने पहले कहा था, it's for networking and it's for sharpening your skills again, because MBA में आपको और थोड़ा इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपोजर मिलेगा. लेकिन BBA के बाद ही मुझे Amazon में जॉब मिली थी. अगर मैं चाहती तो मैं अपना करियर सिर्फ उसमें आगे फॉलो कर सकती थी एंड दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम. तो BBA इज अ कंप्लीट कोर्स इन इटसेल्फ. आपको जो मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल्स चाहिए आप वो सिर्फ BBA से भी गेन कर सकते हैं. But again, MBA is also an excellent course, and इसलिए मैंने I went and did it, and I did it from XIMB Bhubaneswar, which is Institute of Management, and वहाँ पे मुझे फिर एक दूसरा टाइप का एक्सपोजर मिला. But I did it after a couple of years. कुछ साल काम करने के बाद जो मैंने BBA में सीखा था वही सेम चीज और डिफाइंड और डेप्थ में मैंने MBA में सीखा. So आपने 2 साल काम करने के बाद after that you went and did the MBA. Correct me if I'm wrong. 4 years later. Yeah. 4 years. Okay. So as you can see, I think the question was from, just give me the name. Anuradha. I think Anuradha. So Anuradha, as you can see that, BBA is a course in itself. BBA एक ऐसा कोर्स है जो आपके लिए एक मुकाम, एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर देता है. आप किसी भी एंगल पे जा सकते हैं. अगर आपका फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको इफ यू वांट टू गेट इनटू अ जॉब जहाँ पे आपको कोई कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करना है, यू कैन डू दैट. एंड MBA में एक्चुअली पीपल कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स. कि BBA करने के बाद ही MBA करना होता है ऐसा कोई चीज़ नहीं है. आप इंजीनियरिंग के बाद भी कर सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट के बाद भी MBA कर सकते हो, आप कोई भी कोर्स करने के बाद MBA कर सकते हो. MBA कोर्स एक मास्टर्स लेवल का कोर्स है जो आपको, आई थिंक, आपका फर्दर जो आपने नॉलेज गेन किया है उसको कैसे मैनेजमेंट में काम पे लगाना है वो और ज़्यादा सिखाता है. और जैसे मिस प्रज्ञा ने कहा है, उसको आप एक अच्छा नेटवर्क मिलता है क्योंकि बहुत जगह से लोग आते हैं वो MBA कोर्स करने के लिए. सो आपका जो नेटवर्क है वो बहुत एक्सपैंड हो जाता है. सिर्फ आपका एक ही डोमेन में रहता है, क्रॉस डोमेन हो जाता है. And okay, I'll move on to the next question, which I think Dr. Chatterjee can answer. I will like to add one small point here, क्योंकि because 30 साल से ऊपर हो गया मैं एजुकेशन में रहा हूँ. जो मैं ट्रेंड देखा हूँ अमंग स्टूडेंट्स, जैसे आपने मिस मिश्रा कभी आपने सुना कि वो BBA करके फिर काम में चले गए थे, 4 साल बाद उन्होंने MBA किया. अब इट्स वेरी गुड, शी कुड टेक दैट स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग हर जॉब एंड गो फॉर फर्दर स्टडीज एंड कम बैक टू जॉइन अनदर जॉब. बट सबके साथ ये सुविधा होता नहीं है because people come from different backgrounds. क्या होता है, एक बार काम में लग गया तो फिर जाके दोबारा पढ़ाई करने के लिए जाना, नौकरी वगैरह छोड़ के, क्योंकि MBA वो फुल टाइम करना है तो फुल टाइम करना है, कोर्स फुल टाइम प्रोग्राम करना है, तो ये बहुत समय होता नहीं है. इसलिए मेरा एज अ टीचर मेरा जो एडवाइस रहता है कि अगर आपको MBA अगर करने का अभी सुविधा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, यू कैन डू इट नाउ, देन डू इट नाउ इटसेल्फ एंड देन स्ट्रेट अवे गो इनटू द जॉब मार्केट. That is all. Okay. Okay. There is another question that we have is, what is the difference between BBA honors versus regular BBA? Yes, some colleges even promote it as industry integrated BBA. So could you just, sort of give them a picture about this terminologies? I think we already spoke about this. আমরা একটু আগে কথা বললাম যে এই যে আমাদের যে BBA যেটা ইন্ডাস্ট্রি ইন্টিগ্রেটেড যেটা বলছে, that is now their question is BBA honors, normal BBA industry, what is the difference? You see,
or is there at all a difference? There is not much of a difference. The basic studies in all three are same. এবার ইন্ডাস্ট্রি ইন্টিগ্রেটেড কি হয়ে যায় তখন ইউ গো ফর আ পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ ইউ ইয়োরসেলফ সেড কি কেউ স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টে চলে গেল কি হেলথ কেয়ারে ইত্যাদিতে হ্যাঁ সো এটা একটা পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রিতে তখন ফোকাসড হয়ে যায় উইচ আই পার্সোনালি হ্যাভ অ্যাডভাইসড अगेन and BBA honors it is a nomenclature by universities কোথাও বিবিএ আমাদের কোথাও বিবিএ অনার্স বলে কোথাও বিবিএ বলে so it is only a matter of nomenclature where you can take ultimately final year as Pragya correctly said that there is a specialization কেউ ফিনান্সে করতে পারে কেউ সেলস এন্ড মার্কেটিং এ করতে পারে কেউ হিউম্যান রিসোর্সেস এ করতে পারে so that opportunity is there in both. Okay. I think that is more or less what we had to discuss. If there are any questions from anyone's end, we would love to take those. And just one more point that I want to add is rather a question to Ms. Pragya is that we discussed regarding people are doing a BBA course or a management course primarily either to start a business or to get into the corporate sector. How can they ensure that they become successful? ये जो BBA कोर्स अगर वो लोग करते हैं ये 3 साल में उनको क्या क्या क्वालिटीज इम्बाइब करना जरूरी है कि वो 3 साल के बाद एक सक्सेसफुल पोजीशन में पहुंचे खुद को अच्छे से तैयार कर सके যেটা তাদের নিজেদের ক্যারিয়ারের জন্য দরকার সেটা যে তারা ওই 3 বছরে they can create that. How do we ensure that? Okay, so first of all जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो तो इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स रहता है. आप पूरे कोर्सेज देख के जा रहे हैं आप सब सारे सब्जेक्ट समझ के जा रहे हैं बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमें हमारे बीबीए के टाइम पे भी ये बोला गया था कि सिर्फ जो बुक्स हैं जो आपको मिली हुई है असाइंड बुक्स हैं आप सिर्फ वो मत पढ़िए. आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है अगर आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक ए है लेकिन आपको बी भी अच्छी लग रही है तो आप बी भी पढ़िए. आप जितना आप जस्ट पिक आउट अ सब्जेक्ट और आपको उसमें जो इंटरेस्ट है आप रीड फर्दर अबाउट इट क्योंकि आप जितना नॉन फिक्शनल बुक से समझेंगे उतना आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी. आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए आप न्यूज़ देखिए इकोनॉमिक टाइम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज न्यूज़पेपर्स आर एक्सट्रीमली इंसाइटफुल. सो आप जब पढ़ रहे होंगे और उस टाइम पे व्हेन यू आर डूइंग योर बीबीए उस टाइम पे जब आप ये सब पढ़ाई करेंगे और बुक्स पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा आप रिलेट कर पाएंगे. तो नंबर 1 इज आउटसाइड नॉलेज जितना गेन कर सकते हैं वो उस टाइम पे गेन करिए. दैट इज द बेस्ट टाइम बिकॉज आपके पास यू ऑलवेज हैव योर प्रोफेसर्स एट योर डिस्पोजल कि आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं. सर मैम प्लीज मुझे हेल्प करिए मुझे आज न्यूज़पेपर में ये वाला टर्म समझ में नहीं आया. द सेकेंड थिंग इज टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एक्टिविटीज जो आपके कॉलेजेस कराते हैं. टू डू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वॉलंटियरिंग करिए सोशल एक्टिविटीज में हेल्प करिए. मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपकमिंग चीज है which is recycling, not using plastic, for example. ये सब एक्टिविटीज आपके सीवी और आपके रेज्यूमे में बहुत रिफ्लेक्ट करेगा. एंड थर्ड अगर आपको कम्युनिकेशन आपको लगता है दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यूज देने जाते हैं कंपनीज में तो द फर्स्ट थिंग दैट दे नोटिस व्हाट यू आर वेयरिंग हाउ यू आर टॉकिंग. आपका जैसे सर ने कहा था कि रेज्यूमे हैज टू बी टिप टॉप. ट्राई करिए कि आपका रेज्यूमे सिर्फ एक पेज में फिट हो जाए उसको कैसे आप शार्पन करें. सो दीज आर द टॉप 3 थिंग्स और द मोमेंट यू एंटर अ बीबीए कॉलेज उस टाइम से आपको अपना सीवी बनाना स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज वो धीरे धीरे अच्छा होता है और एक्यूरेट होता रहता है. सो दीज आर द टॉप 3 थिंग्स दैट यू शुड कंटिन्यू टू डू. Okay, so I just want to add here that at IIES we have we conduct case studies. We also do various camps like blood donation camps. We take them to various social causes, NGOs where they can participate and they can also interact with these people. So they get a complete picture about not just their lives but lives of people around them as well, which is also very important once you get into a professional course. कि बाहर का दुनिया में क्या हो रहा है वो भी आपको जानकारी बहुत जरूरी होती है. And apart from this, the classes में case studies करना, actual business scenarios लेके ये सब भी करवाते हैं हम लोग जो बहुत important है. And we also have something, we have events that we do, and we always urge our students to take part in these events because events में participate करना is a very important thing जो उसका CV में add होता है, उसका skills में add होता है. एक event organize करना, plan करना, उसको manage करना, ये सब भी important skills है जो आप
ये 3 साल में जो आप कॉलेज में है, ये सब को पिकअप करना चाहिए आपको. अगर आप ये सब पिकअप करते हैं तो आप आगे जाके यू विल बी इन अ बेनिफिशियल स्टेट, राइट? And I think we'll just take 2 more questions because we are about to end this session. One is BBA और BCom के बीच में क्या difference है? I'll just BBA और BCom के बीच में क्या difference है? Dr. Chatterjee, you might want to answer that. These are two completely different programs. आप सीधा देख सकते हैं तो नाम से पता चल जाता है. BBA is Bachelor in Business Administration, BCom is Bachelor in Commerce. So BCom में जो पढ़ाया जाता है, ये जो प्रोग्राम है, इसमें सारे कॉमर्स में जो आता है, और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स आता है, डिफरेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसी पे सारा सब कुछ है. एवरीथिंग इज अबाउट फिनांस एंड कॉमर्स. वेरएज बीबीए हम ये तो कई बार डिस्कस किए हैं अभी इसी प्लेटफॉर्म में आज ही, कि बीबीए कोई एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं लेके जाता है. आप पढ़ने के समय आपको खुद को पता चलता है in which you want to make your career. Is it going to be finance, or is it going to be sales and marketing, or is it going to be human resource? So ये completely different है. Right. Pragya, do you want to elaborate on that? If anything you want to say? I think what sir has said has completely covered, because BCom और BBA is again जिन्हें पता है कि उन्हें business world में जाना है, but किस field में जाना है उन्हें वो नहीं पता है, because they want to be open. It's too soon. Right after school आप नहीं decide कर सकते कि आपको मुझे exactly ये करना है. A lot of people they want to explore their opportunities. So BBA में वो आपको advantage रहता है. Right. And I think we have already answered the last question that I can see here, that what is the difference if I pursue MBA after BBA or if I do an MBA after any other course? I think Pragya has already answered that once. Yeah, so the main benefit, I think, Pragya, if you just say it in one line once more, MBA after BBA versus MBA after any other course, just in one line, if you can just share it. Yeah. So again, BBA में आप जो स्किल सीखेंगे, MBA में आगे जाके आप उन्हीं स्किल्स को और शार्पन करेंगे, वही इन डेप्थ सब्जेक्ट्स को और समझेंगे. MBA में थोड़े और केस स्टडीज होगा और इंडस्ट्री रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो यहाँ पे आपका एक पार्ट चॉक्ड आउट है कि आपको एनीथिंग बिजनेस रिलेटेड करना है. कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है, कोई भी वर्टिकल में काम कर सकते हैं, जैसे सर ने कहा था. यहाँ पे आपको हर स्पेशलाइजेशन के बारे में पता चलता है. वाइल अगर आप कोई और कोर्स करते हैं, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से इंजीनियर्स, तो इंजीनियरिंग में अगेन विल बी अ वेरी टेक्निकल फील्ड, और वहां पे जाके उसके बाद आप एमबीए तब करते हैं जब आपको अब मैनेजर बनना है, व्हेन यू वांट टू स्विच फील्ड्स फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एमबीए. बट बीबीए इज वॉकिंग द सेम पाथ. So I think I will just add one small thing here. मैं पहले भी कहा था, I will say right now also again, that immediate BBA, MBA after BBA, it would always be an advantage for the person who has done his BBA compared to people who have come from other streams, because BBA gives them that foundation, so their grasping of the input in MBA is much easier compared to people who are coming from who is an engineer or he is a hospitality professional compared to them. So BBA gives us a stronger platform. Because आप कोरिलेट कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा है आप उस चीज को कोरिलेट कर पा रहे हैं. Exactly. Yes, Devjit, I think we have already answered that BBA honors and the usual BBA. These are just names used by various universities. The core content is 95% probably the same, if not 100% same. So I think we have already discussed that. That is the end of today's discussion, I think, and we really want to thank Ms. Pragya for joining us today, and Dr. Anshuman as well for being a part of this conversation. We really thank you for your time and your views, and I think all the students that have joined this session, they have learned immensely from your inputs. We really appreciate the personal touch that have been there in your messages, and I will hope that the students can take it forward and really put it to use this session. And thank you everyone, and stay home, stay safe, and let's come out of this together in this lockdown. And thank you again. So we'll just